بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات محترم المقام حجت الاسلام مولانا سید ریحان نقوی صاحب قبلہ شاعر آل محمد حضرت قسیم امروہی صاحب شعراء اہل بیت ذاکرین حسین منقبت خان نوحہ خان سلام گو شعراء سادات مومنین اور مومنات آج کی مجلس عزا جو برادرم سید فلا حسین رضوی صاحب کے دولت خانہ پر ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے شان ابو طالب ایمان ابو طالب اس لیے نہیں کہا کہ امت کو کیا حق ہے کہ مربی رسالت میں ایمان کرے اس کو میں تھوڑی سی انسلٹ سمجھتا ہوں مربی رسالت کے حق میں شان ابو طالب پہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ایک ڈاکومنٹیشن آج دستاویز آج رقم کر دی جائے گی تو باقی پھر جو 9 دستاویزات ہیں وہ شاہ نجف میں آئیں گی اب تو وہیں پر باقی آنا ہے تو ذرا ملاحظہ فرما لیجیے کہ جس سورہ کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اسے کہتے ہیں سورہ والضحیٰ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا ساتھ دے رہے ابو طالب کریڈٹ لے رہا ہے اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آخرت میں اور اچھا رکھا ہے آپ کے لیے میرے حبیب گھبرائیں نہیں اگر دنیا میں تکلیفیں ہیں تو آخرت بڑی اچھی ہے میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں جن کو دوست تنگ کرتے ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ آپ کی عاقبت اچھی کر رہا تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے آپ تو شکر گزار ہوں جو آپ کی دنیا خراب کر رہے ہیں اور آپ کی عاقبت کو اچھا کر رہے ہیں
सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब अन करीब, ज्यादा दूर नहीं, सौफा जरा से दूर के लिए आता है, सीन बहुत करीब के लिए। थोड़े ही अरसे में आपका रब आपको वो देगा कि आप उस पर राजी हो जाए। देखिए अजीब है, उम्मत कोशिश करती है कि हम रजी अल्लाह बन जाए, खुदा कोशिश करता है मेरा हबीब मुझ पे राजी हो। खुदा खत्म अंबिया अलम यजिद के यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब क्या आपके रब ने आपको यतीम पाकर आपको पनाह नहीं दी? कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत भी की, व आवौ, और उन्होंने किसी को पनाह भी दी, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये हकीकी मोमिन है। हकीकी मोमिन की शर्त है ईमान के साथ दो जहां के सरदार को पनाह भी दे, ये हकीकी मोमिन है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हबीब आप गुमशुदा मीरास नहीं थे और आपको आपके रब ने पहचानवाया। आपको तो कोई जानता ही नहीं था, पहचानवाया तो आपके रब ने। ववजदका आइलन फअगना, हबीब आप गरीब नहीं थे और आपके रब ने आपको गनी बनाया। जिसे उम्मत गनी बनाए उसे तो आप खिलाफत दे रहे हैं, और जिसे मोहम्मद गनी बना, जिस मोहम्मद को अबू तालिब गनी बना रहे हैं। असल में गनी अल्लाह ने कहा मैंने गनी बनाया, मगर बनाया अबू तालिब ने। 100 ऊंट दिया है अपने भतीजे को कि कर्ज उतार लो। खदीजा ने सारा माल दिया है कि इस्लाम की प्रोपगेशन कर ले। तारुफ कराया है उंगली पकड़कर अबू तालिब ने, पनाह दी है अबू तालिब ने, पैसा दिया है अबू तालिब ने और खदीजा ने, और क्रेडिट ले रहा है अल्लाह अपने लिए। वो खुदा जो कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे हबीब ये संग्रेज़े तुमने नहीं फेंके, ये हमने फेंके। आप तो बोलते नहीं जब तक वही ना आए। तो आका करीम की ज़बान पे भी स्टैम्प है तौहीद की और वही की, और आपके किरदार पर भी सील है कुदरत की। आप जो कहते हैं वो रब कहता है, जो करते हैं वो रब करता है। तो अब जरा गौर फरमाए, अगर यही बात समझ में आ जाती मुसलमानों के तो अबू तालिब का मकाम समझ में आ जाता कि अल्लाह अपने हबीब के कौल को अपना कौल कहता है, अपने हबीब के फेल को अपना फेल कहता है। फिरौन के कौल और फेल को अल्लाह अपना फेल नहीं कहता। तो खुदा जो नबी के कौल और फेल को अपना फेल कहता था, वो अबू तालिब की पनाह को अपनी पनाह कह रहा है, अबू तालिब की दौलत को अपनी दौलत कह रहा है। देखते आइए कि अजीब शान से इरशाद होता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। इस आयत में इरशाद हो रहा है कि ऐ मेरे हबीब आपका जो महबूब है आप उसे हिदायत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत करता है। व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह के पास तो हिदायत याफ्ता की फहरिस्त है। देखिए आज हमारे भाई फिदा हुसैन के यहाँ जितने लोग आए हैं इनके पास आने वालों की फहरिस्त है। तो अगर कोई ना आया हो तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि हमारे पास फहरिस्त है। फहरिस्त तो आने वालों की होगी ना आने वालों की थोड़ी होगी। अल्लाह का ये जुमला कि हिदायत याफ्ता की मेरे पास फहरिस्त मौजूद है, यही दलील हिदायत अबू तालिब है। और फिर ये गलत
بدناमी ये हो गई कि लोगों ने कहा कि ये आयत हजरत अबू तालिब के खिलाफ नाजिल हुई कि भतीजा चचा को कलमा पढ़ाना चाहता था और चचा कलमा नहीं पढ़ रहे थे और अल्लाह बार बार प्रेशर डाल रहा था, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जो आपका महबूब है इसे आप हिदायत नहीं कर सकते। अब ये तय करेंगे, अभी तय करेंगे। मेरे एक बात तो तय हो गई ना कि यहाँ पर हबीब की बहस है, हबीब की, हबीब और महबूब की बहस है कि ऐ मेरे मोहम्मद तुम हो मेरे हबीब और तुम्हारे हबीब का नाम है अबू तालिब। और बुखारी शरीफ में लिखा है जब किसी सहाबी ने पूछा कि क़यामत के दिन मैं कहाँ आऊंगा सरकार, आपने फरमाया इन्नका मअ मन अहबब्ता, तू उसके साथ होगा जो तेरा हबीब होगा। तो पता चला क़यामत के दिन हुजूर वहां होंगे जहां अल्लाह होगा और अबू तालिब वहां होंगे जहां हुजूर होगा। ये जो कहा है कि आप हिदायत नहीं कर सकते मेरे हबीब, इसलिए कि मेरे हबीब अभी आप तो पैदा नहीं हुए थे और आपका अल्लाह अबू तालिब को हिदायत कर चुका था। ये नफी की जा रही है कि आप थोड़ी हिदायत करेंगे, वो तो अज़ल से हिदायत में फ़ाइज़। फरमाते चले, देखिए ये हमारे यहाँ एक हजरत अबू अयूब अंसारी जो हुजूर के होस्ट थे, होस्ट, पहले होस्ट कीजिए। मदीने में बड़ी इज्जत होती है, तभी तो हम शादी की बड़ी इज्जत करते हैं। पहले होस्ट कीजिए। हाँ, पहले होस्ट का बड़ा एहतराम होता है, जो पहले किसी को मेजबान रखता है। सरकार गए वहां पर, मौलाना मोहतरम सरकार रहे टोटल 90 दिन, 3 महीने सरकार वहां रहे हैं, तकरीबन 90 दिन। जब 90 दिन के बाद हुजूर निकलने लगे अबू अयूब अंसारी के घर से, तो आपने फरमाया या अबा अयूब अंसारी हाथ कलमन व दवातन व किरतासा अक्तुबु लका जवाज़ल जन्ना। अबू अयूब अंसारी, ये 3 महीने जो आपने हमारी खिदमत की है ना, कलम लाओ, दवात लाओ, कागज लाओ, हम जन्नत की रसीद लिख दे। तो समझ रहे हैं, हम तो पता चला कि हुजूर लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। और फिर जो 3 महीने तक होस्ट रहे आका करीम का, उसे तो आका जन्नत की रसीद दे, और जिसके घर में 40 साल रहे बात यह है कि कुरान मजीद में ये खुला ऐलान है, और वो ये कि वमा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है कि मुशरिकों का किरदार इतना खराब होता है कि हम उन्हें मस्जिद बनाने की तौफीक नहीं देते। मस्जिद में कौन नमाज पढ़ेगा? उम्मती। अगर उम्मती ने नमाज पढ़नी हो तो हम तौफीक ही नहीं देते मुशरिक को कि वो उम्मती के लिए मस्जिद बनाए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हम तो मोमिनों को तौफीक देते हैं कि वो बनाए मसाजिद। मुलाजा कीजिएगा, मसाजिद का बनाना, तामीर करना, उनको आबाद करना मोमिनों का काम है। मुशरिक तो बना नहीं सकते, बल्कि यूं क्यों ना कहूं, मुशरिक तो छोड़ दे, कलमा को भी अगर बना दे और हो वो ज़िरार, तो अल्लाह नबी से कहता है कि ला तकुम फीह अबदा, ला तुसल्ली, यहाँ खड़े नहीं होना, उन पे जनाजा भी नहीं पढ़ना जो मुनाफिक है बनाने वाले, और इसमें आपने कदम भी नहीं रखना, क्योंकि मुनाफिक ने बनाई है। न मुशरिक की बनाई हुई मस्जिद में नबी जाएंगे, उन्हें तो तौफीक ही नहीं होगी। मुनाफिक की बनाई हुई मस्जिद में नबी खड़े हो सकते हैं, इसलिए कि नबी के लिए हराम है।
न काफिर की बनाई हुई मस्जिद में, ये कुरान कह रहा है, वो सिर्फ उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे हुजूर जो मोमिन ने बनाई होगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका की तरह तो हुजूर है नहीं कि ग्रीन कार्ड के बाद न पढ़े नमाज, या सिटीजनशिप के बाद सुन्नतें छूट जाए। नबी तो नबी है, वो तो बदलने वाले नहीं है, वो तो घर में भी पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं। 3 साल जो शेर अभी तालिब में रहे हैं, उन्होंने अबू तालिब की घाटी में नमाज पढ़ी है या नहीं? जहां कोई नमाज पढ़े, सजदा करे, वो बनती है मस्जिद। आप अगर उम्मत के लिए जाए सजदा बनाए तो आप मोमिन हैं, जिसने रहमतुल लिल आलमीन का सजदा कराया है वो काफिर है। सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। जरा गौर कीजिए, ये क्या ऑर्डर है मेरे हबीब? आप भी शरीयत से मुस्तस्ना नहीं है, ये कानून आज याद रख लीजिए। जब हुजूर शरीयत से एग्जम्प्ट नहीं, तो कोई मौलाना, कोई लीडर कैसे शरीयत से एग्जम्प्ट हो सकता? उसको रोल मॉडल बनना होगा पहले। आप भी शरीयत से मुस्तस्ना नहीं है। आप पर भी हुक्म है कि आप भी अपने माँ बाप का एहतराम करें। अब हुजूर को हुक्म है कि माँ बाप के सामने आप झुक जाएं, और हमारे अमेरिका वाली औलादें चाहती है कि हम उनके सामने झुक जाएं। ऐसे हो रहा है, वो तो ऐसे ही। तो एक साहब है, वो हमारे अलहाज साहब के वो जानने वाले हैं, उन्होंने तकरीर की कहीं पर, तो उन्होंने तकरीर में ये जुमला कहा, ईरानी है वो, स्कॉलर है। उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चा था तो अपने बाप को कहता था चश्म, चश्म कहते हैं यस, यस सर, यस सर को कहते हैं चश्म। और जब मैं बच्चा रखता हूँ तो बेटे को कहता हूँ चश्म। ये अमेरिका की बरकत है। क्या कह रहे हैं? आप अपने बच्चों को अगर मराकज़ दीन में ले आएंगे, उलमा के करीब करेंगे, मदारिस के करीब करेंगे, तब तो आपके बच्चे ठीक होंगे। वरना किसी का स्टेटस आदम से ज्यादा नहीं है। आदम का इमीडिएट बेटा अगर खराब हो सकता है तो आप क्या चीज है? इस गलतफहमी में आप बैठे हुए। तो मदारिस से मजबूत रखिए, मराकिज से मजबूत रखिए, और पॉलिटिक्स छोड़िए, वरना नस्ल खो देंगे आप। पॉलिटिक्स न कीजिए, दीन में पॉलिटिक्स न कीजिए। पहली पॉलिटिक्स का नाम शकीफा था। तो आपने फरमाया हुक्म आए नबी, ये है मेरे हबीब, आप भी एग्जम्प्ट नहीं है। आपके दोनों माँ बाप या उनमें से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उन्हें उफ़ न कहना, उन्हें झिड़की भी न देना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमत। और जब वो आ जाए आपके सामने, वो दोनों बूढ़े माँ बाप, अगर वो आपके सामने आ जाए तो अपने कंधों को झुका दे। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और जब भी बोलना मेरे हबीब, इनसे धीमे लहजे में बोल, इनके सामने लहजा सख्त न करना। ये माँ बाप है, इनके सामने लहजा सख्त नहीं करना। वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर पैदा हुए ऑर्फन, यतीम पैदा हुए, दो की तो बात ही नहीं रही। 6 साल की उम्र में अम्मा चली गई। अब वो दो तो बूढ़े होंगे नहीं इनके सामने, तो कुरान मफरूजों की किताब तो है नहीं। ये फिर कौन से माँ बाप है? ये लोग कौन से माँ बाप है?
کرنا ہے. آج دعا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. علی اس میں الہی ہے. زبان کے ساتھ دل بولا. علی مولا علی مولا علی مولا میں تولا. علی مولا علی مولا. نبیوں کا ہیلپر, محمد کا سکسیسر, اسلام کا ڈیفینڈر, جبرائیل کا ٹیچر, جنگوں کا فائٹر, آخرت کا لیڈر, جنت اور دوزخ کا ڈیوائیڈر, ہم سب کا نیویگیٹر, دشمن ہو جس کے فائٹر, دشمن ہو جس سے ہے, دشمن ہو جس سے اینگری, دوست ہو جس سے ہیپی. علی تیرے دوست رہے سلامت, علی تیرے دشمنوں پہ لعنت. اگر دوست مل کر نعرہ حیدری. دیکھیے باپ تو پیدا ہوئے تو باپ مر چکے تھے. حضرت عبداللہ علیہ السلام, حضرت عامرہ بنت وہب سلام اللہ علیہا 6 سال کی ایج میں چلی گئی. اچھا اگر آپ کہیں کہ جی اس سے مراد دادا ہوں گے تو دادا تو 11 سال میں چلے گئے. اور لفظیں دیکھیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بچے کے لیے لفظیں ہیں 6 لفظیں ہیں بچے کے لیے, جن میں سے 3 آئے سن لیجیے. ایک لفظ ہے جنین, ایک ہے رضیع, ایک ہے صغیر. کچھ بڑا دیکھیے, جنین وہ بچہ جو شکم مادر میں. یہ نہیں کہا کہ میرے ان ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے اس وقت میری تربیت کی جب میں جنین تھا. کچھ سمجھیں گے نہیں. یہ بھی نہیں کہا جب میں رضیع تھا, ورنہ مراد ماں تو کم از کم ہوتی. فرماتے ہیں ان ماں باپ پہ رحم کر کہ میں صغیر تھا. صغیر ہوتا ہے 15 سال تک. 15 سال تک کون سے ماں باپ ہیں جنہوں نے صغیر سمجھ کے رحم کیا ہے اور تربیت کی ہے؟ یہ غلط کلام ہے, رحم کا لفظ نہیں ہے. یہ میں غلط فہمی دور کر دوں, رحم نہیں کیا. رحم کی امید یہاں نہیں ہوتی, وہ مجرموں کہاں ہوتی ہے. یہ رحم نہیں ہے, بلکہ لفظ یہ ہے کہ ان ماں باپ پہ تو رحم کر جنہوں نے میری صغیر ہوتے ہوئے تربیت کی. تربیت. اب ہمارے مولانا ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں یہاں الحاج صاحب کے پاس. میں الحاج سے کہوں کہ میرے پاس ایک 2 نمبر کا مولانا ہے, یہ کہ آج کل مارکیٹ امریکہ میں بہت زیادہ. آج کل وہ بلکہ 1 نمبر کے اب جانے والے ہیں آہستہ آہستہ, وہ بھی 2 نمبر والے ہی آ رہے ہیں سر. ان پڑھ ہونا شرط ہے اب ہمارے مولانا کے لیے. ایسے ہو رہا ہے, بالکل ایسے ہو رہا ہے. میں نے الحاج سے کہا میرے پاس ایک 2 نمبر کا مولانا ہے, بڑا اچھا زبردست چپڑی چپڑی باتیں کر کے ایسا شاہد والوں کو خوش کرے گا کہ رہے اللہ کا نام. ایک کام کر دیجیے, ہے وہ فاسق, ہاں ہے وہ فاسق, آپ مہربانی کیجیے اپنے سنڈے اسکول کے لیے رکھ لیجیے, میں ان کو تنخواہ دیں. آپ ایمان سے بتائیں یہ الحاج اپنے بچوں کے یا دوسروں کے بچوں کی, قوم کے بچوں کی تربیت کے لیے وہ فاسق ٹیچر رکھیں گے؟ میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا کہ الحاج تو آج کی امت کے بچوں کے لیے فاسق ٹیچر شاہ نجف میں نہ رکھے, اور اللہ نے کافر کے سبب تربیت ابو طالب. قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو محمد مصطفیٰ اف نہیں کہہ سکتے. سمجھنا اف سمجھتے ہیں, اف. یہ میں سمجھا بچوں کو سمجھانے کے لیے, چھوٹے بچے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں, جو
मेरे दर्द ऊप्स, ये जो ऊप्स का लफ्ज होता है, ऊप्स, हाँ ऊप्स, ये जो ऊप्स बच्चे कहते हैं, ये ऊप्स। बाप ने कहा, माँ ने कहा बेटा खाना खा, ऊप्स, ये मना है, इन बच्चों को सिखाइए, ये शरण जायज नहीं है। माँ बाप के सामने कैसे ऊप्स कहें, या कहने 1 मिनट आजकल एक रवाज है, बच्चे तो वही काम कहेगा, खासतौर पर अगर वो ब्लैकबेरी पे बैठा हो। जी हाँ, तो शाह जी वो कहता है 1 मिनट, ये 1 मिनट मासीयत वालिदैन है, ये गुनाह है कबीरा। भैया माँ के लिए तो सुन्नती नमाज छोड़ के आने को समझे ना, माँ बाप के एहतराम, और बाप के लिए सुन्नती नमाज को मुख्तसर करके आना। माँ बाप का एहतराम भी है, हमने दुनिया को इस्लाम सिखाना था और राइट सिखाने थे, आप फासे को फाजिल से राइट सीख रहे हैं। नबी से कहा कि आप उफ नहीं कह सकते इन दो, अबू तालिब को, फातिमा बिन्त असद को आप उफ नहीं कह सकते। दूसरी बात ये कि आप इनको झुड़की नहीं दे सकते। हमारे यहाँ जैसे आजकल तैयारियां हो रही हैं, एक पूरा गिरोह है जवानों का, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना बड़े इदारे आपने बनाए हैं, एक जरा आप नर्सिंग होम भी बना, ताकि हम अपने बूढ़े वालिदैन को आपके नर्सिंग होम में जाके डाला। खाक है ऐसी दौलत पर, और शेम है ऐसे ग्रीन कार्ड के ऊपर, और दुख है ऐसी सिटीजनशिप के ऊपर। उन्होंने उस वक्त तुम पर रहम किया जब तुम परवान चढ़ रहे थे, तुम उस वक्त उनका ख्याल नहीं रख सकते जब वो तैयार बैठे। तो ये हुजूर को हुक्म हो रहा है, क्या हुक्म हो रहा है कि आप उफ न करना, आप झुड़की न देना, आप धीमे लहजे में बात करना। और मेरे हबीब आप इनके लिए हमेशा दुआ करते रहना, इन दोनों माँ बाप के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नबी को तो हक नहीं उफ कहे इन दोनों को, समझ रहे जरा, जिनके लिए सारी कायनात पैदा हुई है, उस नबी को उफ कहने का हुक्म नहीं, झुड़की देने का हुक्म नहीं, धीमे लहजे के अलावा बात करने का हुक्म नहीं, और बदबूदार मुल्ला इनके ईमान पे इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर खोल रहा। समझ रहे? अच्छा अजीब बात है कि रब्बिर रहम्हुमा, अब हमसे कहते हैं, हमारे आगा माजिद ने भी कहा इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, अल्लाह इनको शिफा दे। हमारे अशरफ भाई को भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। साहिब खाना के हामी जो मंजूरी है, अल्लाह करीम उनको शिफा दे, इस घर को भी आबाद शाद रखे। और सामने जो बैठे इनमें कोई अलील है, बीमार है या जो नहीं आ सके, अल्लाह करीम सबको शिफाया फरमाए। दुआ के लिए कहते हैं, मौलाना से कहा, मुझसे कह लिया, शाहिद साहब से कहा, इसलिए कि चंद इंच या चंद फीट हम ऊपर बैठे होते हैं। मैं ये बात आज तक न समझ सका कि आज कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, कोई भी उसकी मुश्किल हो, अपने मरहूमीन को बख्शवाना हो, अपने लिए आखिरत बखैर करानी हो, तो कहते हैं मौलाना दुआ करें। मैं इस बात को न समझ सका कि दुनिया आज समझती है कि मौलाना की दुआ कबूल होती है। अगर मौलाना उम्मत के लिए दुआ करें तो कबूल है, और कायनात का सरदार अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद मरते वक्त कह रहा है। मैंने एक किताब लिखी है जो छप रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर, प्रेस में सब मौजूद। वो एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने स्पॉन्सर किया उस किताब को। तो मैंने वैसे टोटल कलेक्शन की है, मेरे पास जो अशआरे हजरत अबू तालिब मेरे पास आए हैं वो 3333। जी हाँ, 3333 अशार। मैं कोशिश करता रहा, पहले मुझे 200 मिले, फिर 600 मिले, फिर 1000 मिले, फिर 1200 मिले, आखिर में आकर 4 साल पहले 3333। और मशहूर ये है कि आयत कुल है 6666, और शुआरा बताएंगे कि शेर के मिसरे होते हैं 2। कैलकुलेट सही है।
तालिब के मिसरे 6666, अगर ये मुसलमान नहीं तो फिर कोई भी मुसलमान नहीं। देखे तो सही, अगर कभी अगर अशरा पढ़ा, अभी मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर मैंने अशरा पढ़ा इंशाअल्लाह तो मैं पूरा अबू तालिब पे पढ़ूंगा और हर शेर को साबित करूंगा, हर शेर आयत के मुकाबिल पर है। हर शेर मिसाल दे रहा हूँ, मसलन जो खुतबा पढ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफा और खलील अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन नस्ल इब्राहीम व ज़र्अ इस्माईल। हमद है उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम और इस्माईल की नस्ल ज़र्अ में औलाद में पैदा की। ये अल्हम्दुलिल्लाह का सबसे पहले जुमला पब्लिकली हजरत अबू तालिब ने कहा। सबसे पहले तो हजरत अबू तालिब ने कहा, और सबसे पहले इन्ना लिल्लाह पब्लिकली अली ने कहा। आज मुसलमान जब खुश होते हैं, अभी ये शादी की मजलिस अच्छी हो गई, मजमा भी जुड़ गया माशाअल्लाह, पढ़ने वालों ने भी खूब दिल खोल के पढ़ा, अच्छा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अच्छा पढ़ा है। बेहतरीन मजलिस शादी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी के मौके पे मुसलमान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गमी के मौके पे कहते हैं इन्ना लिल्लाह। एक बात तय हो गई, ये शादी नहीं कहते, सब कहते हैं। जितने फिरके हैं मुसलमानों के, सब खुशी में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सब गमी में कहते हैं इन्ना लिल्लाह। तो वैसे माने या ना माने, खुशी और गमी में तो बाप बेटा ही के फॉलोअर है। पहला शेर है वो उसमें यही है, हामिदन मुसल्लियन, हम्द करते हुए अल्लाह की, सलात भेजते हुए उसके रसूल पर। भैया अभी कुरान तो आया नहीं, ये कहे की सलात भेज रहे? कुरान के आने के बाद कोई सलात भेजे तो वो मुसलमान होता है, और कुरान से 30 साल पहले कोई सलात भेज रहा हो तो वो काफिर होता है। कोई मुरादा तो करे आप हजरत, अजीब मंजिल फिक्र है ये हामिदन। तो गोया पहला दीवान अबू तालिब का पहला जुमला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बता दूं, आखिरी 333वां आखिरी, अजीब है खुदा की कसम, अऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि ताइनिन और मुलहिन बिबातिली। मैं पनाह में आता हूँ अपने रब की जो नास का रब है, हर उससे कि जो मुझे काफिर कहे, हर उससे जो मुझे ताना दे। तो देखिए अऊज़ु बिरब्बिन नास मिन कुल्लि ताइनिन अलैना और मुलहिन बिबातिली। हजरत अबू तालिब का दीवान शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पे, और दीवान खत्म हुआ अऊज़ु बिरब्बिन नास पे। अल्लाह का कुरान शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पे और खत्म हुआ कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अजीब बात यह है कि देखिए जो पहला जलसा इस्लाम का हुआ वो अबू तालिब का, इस्लाम की पार्टी का पहला जलसा। ये फाउंडेशन बन रही थी, उसमें ट्रस्टीज को चुना जा रहा था, डायरेक्टर्स को चुना जा रहा था, तो उसके लिए दावत आम दी जा रही थी। तो इरशाद हुआ वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब करीबियों को डरा डराना तो जाहिर है इसे, करीबियों को डरा। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम इसमें आज़म पढ़ के आते हैं कि वो मजलिस में कहीं डराए नहीं, बड़े डरावने लोग, अल्लाह ताला उनके शर से हम सबको महफूज रखे। आज बल्कि एक साहब बेचारे
किसी एजेंसी में मुलाजिम है, वो बता रहे थे मुझे कि मौलाना अंकल जरा एहतियात कीजिएगा, हमारी कौम के बहुत लोग गलत जगहों के एजेंट हैं। मैंने कहा मौलाना अंकल सबको जानते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव, हमें पता होता है, कोई घबराने की बात नहीं। तो हम कोई ऐसी बात करते नहीं कि हमें डरो, हमने अल्लाह के फजल करम से सिर्फ काम ही अबू तालिब का किया। तो आप जब मुलाज़ा फरमाए कि ये पहला जलसा हुआ तो इसमें स्पॉन्सर किया जलसे को अबू तालिब ने, पहला जो जलसा था उसको स्पॉन्सर किया अबू तालिब ने, और खाने का अरेंज किया अली इब्न अबी तालिब ने। सीना ठोक के तारीफ की अली इब्न अबी तालिब ने। 2-3 दिन मुसलसल इख्तिलाफ रिवायत ये खाना खा के भाग जाते थे। इसलिए हमने नियाज का बंदोबस्त मजलिस के बाद रखा। तो ये तरीका था उनका, चले जाते थे। तीसरे दिन फ़अख़ज़ फ़ी यदिही अबू तालिब सैफ़हु, चौथे दिन या तीसरे दिन इख्तिलाफ है रिवायतों में, अबू तालिब ने नंगी तलवार पकड़ी अपने हाथ में। आज तक आपने अली की तलवार सुनी है, आज अबू तालिब की तलवार की बरकत भी सुनी। यूं लहराई तलवार अबू तालिब ने 40 सरदारों के सरों पे। अजीब मंजिल फिक्र है, टोटल 40 थे, टोटल 40। ये गलत लोग पढ़ देते हैं 300 थे, 150 थे, 40। ये तहकीक कर रहा हूँ, 40 सरदार थे जिनको बुलाया गया था दावते जुल अशीरा में, और 40 ही सरदार थे शब हिजरत में जो मोहम्मद को मारने आए थे। मुझे मुलाजा फरमा रहे जब दौरे मोहम्मद के मुसलमान न बदले तो आप क्या है के लिए बदल रहे हैं? वही है चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी, इसी में ही काम करना है, इसी में इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, एक साहब मुझे कह रहे सारे मोमिन इकट्ठे हो जाएं तो फिर आप अखबार में कॉलम शुरू करो। मैंने कहा उस वक्त तक तो हम कब्र में जा चुके होंगे, आप क्या मशवरे हमें दे रहे हैं? सारे मोमिन भी कभी इकट्ठे हुए, जो इमामों में इकट्ठे न हुए, हम गरीबों में क्या करते? इसलिए काम कीजिए, जो आपको थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। यही हमने अबू तालिब वली से सीखा, एक लम्हा ज़ाया न हो नुसरत मुस्तफा में। तो स्पॉन्सर किया और तलवार हाथ में पकड़ी और जुमला कहा, ला यक़ूमन्ना अहदुम मिनकुम हत्ता यस्मअ कलामा इब्ने अखी। खबरदार जो आज कोई उठा, जरा समझे, 40 के 40 क्या, खबरदार जो आज कोई उठा उस वक्त तक तुम में से कोई उठ नहीं सकता जब तक मेरे भतीजे का कलाम न सुन ले। ईमान से बताएं इन दोनों का मजहब एक था? इन दोनों का कोई मजहब एक थोड़ी था। कहा खबरदार जो कोई उठा। उधर से अबू लहब बोला, उसको अबू तालिब कहते हैं, देखिए बड़ा भाई है, बड़ा भाई, हमारे यहाँ भी बड़े भाइयों को बड़ा एहतराम होता है, आप भी कीजिए। हमारे जो बड़े भाई हैं मजहबन, उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं। मजहबन फिरकतन जो हमारे बड़े भाई होते हैं बहुत हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कोई इज्जत नहीं की। कहा कि उसको जो आवर वो भीगे खामोश। ये हमने अबू तालिब से सीखा है कि जो शान रिसालत का गुस्ताख हो वो भीगा होता है। और दूसरा जुमला मेरे भाई अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने लिखा कि नहीं, आवर नहीं कहा, कहा था अहमक। ठीक है, ठीक है, वो है नहीं उसको या अहमक, अहमक खामोश। मालका वहाजा, खबरदार जो तूने हाजा को छेड़ा। ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह का अच्छा हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आज हमारे नबी को तुमने हाजा कहा है ना, अब गदीर में तुम्हारे बेटे को हम हाजा कहलाएंगे।
अली अली, काबा का गौहर अली अली, सारा का शौहर अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, सब मिलके बोलो अली अली, मुनकिर की तबाही अली अली, तेरी कब्र के बाहर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली, नारे बस तकरीर तमाम हो रही है। इंशाअल्लाह अशरफ भाई के घर में पढ़ूंगा इम्तियाजात इमाम हुसैन। 10 गिनवाऊंगा, 10 सिर्फ 10 कि जो किसी कायनात के बशर में नहीं है, सिर्फ हुसैन में। तो अब यहाँ पर मैं 2 जुमले और कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। बस 2 जुमलों पे आज की तकरीर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। फतवज्जह अबू तालिब इला इब्न अखी, फिर तवज्जो फरमाई आपने अपने भतीजे की तरफ और कहा कौम या सैयदी व मौलाया वबल्लिग रिसालत रब्बिका व कुल बिमा तर्जा व तशा। उठिए उठिए मेरे मौला, उठिए मेरे सैयद। मैंने बड़ी तहकीक की है, खुदा की कसम आज तक अबू तालिब ने हुजूर को न सैयद कहा नहीं मौला कहा। ये पहला जुमला है। तो किसने बताया था अबू तालिब को कि आज ऑफिशियल पोस्ट मिल गई? उसने नया बोला है मेरे सैयद है मेरे मौला। ये जुमले भी इतने पसंद आए अल्लाह को कि आपने आज मेरे हबीब को सैयद कहा। अब मैं क़यामत तक सैयद तुम्हारी नस्ल में मुनहसर हूं, क्योंकि अल्लाह के ऊपर एहसान हो गया था 2 का बहुत, अबू तालिब का और खदीजा का। इन 2 का बहुत बड़ा एहसान हो गया था। अल्लाह ने सोचा मैं कैसे बदला दूं। कहा क्यों ना हो, बेटा हो अबू तालिब का, बेटी हो खदीजा की, नस्ल चले मोहम्मद की। अल्लाह सलाम, अल्लाह तो कुछ। देखिए बात खत्म हो रही है कि कहा मौला, मौला जो कहा तो ठीक है, अगर आज तुमने मेरे इस हबीब को मौला कहा तो अब हम गदीर में तुम्हारे बेटे को मौला कहलवाएंगे। ये वहां की इन्वेस्टमेंट है जो जिसका कर्ज उतारा गया है गदीर के अंदर। आखिरी बात, फिर अगर जिंदगी है तो कहीं और पढ़ेंगे या यहीं फिर पढ़ेंगे अगले साल से। आखिरी बात, एक अकीदा है इख्तिरानुल मलक का, इख्तिरानुल मलक के बिरादरान अहले सुन्नत व जमात ने लिखा है कि नबी के साथ एक फरिश्ता हमेशा चिमटा हुआ रहता है, चिमट के रहता है नबी के साथ। उसका काम ये होता है नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र ना बशत। उसका काम ये होता है कि जब नबी गलत रास्ते पे चलने लगे तो वो उनकी डायरेक्शन को मोड़ देता, स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है। यानी यही कहना चाहते हैं ना, हमारे यहाँ तो अगर है स्टीयरिंग तो हसनैन के हाथ में है, हमारे यहाँ किसी और के हाथ में नहीं हो सकता। फरिश्ता वहां नहीं पहुंच सकता जहां हसनैन पहुंचते। तो कहा कि ये फरिश्ता साथ रहता है, अगर कहीं गलत हाथ उठे नबी का तो हाथ को रोक लेता, और अगर कदम उठे तो कदम को रोक लेता है। ये इख्तिरान मलक का अकीदा। अब मैं पूछता हूँ उनसे जिन्होंने ये लिखा है कि जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाबा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने नबी के तमाम चचाओं को इकट्ठा किया था और कहा था कि जिसके हाथ में मेरा पोता अपना हाथ दे दे, वही इसका कफील होगा, वही इसका मुरब्बी होगा, वही इसकी तरबियत करेगा, वही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी के घर में ये रुकेगा, वही ये टिकेगा। कहा था ना। तो अब ये बात है उसी किताब में जिसमें ये लिखा है इख्तिरान मलक, अगले सफात में ये भी लिखा, ये जुमला उसी में लिखा है कि सारे के सारे चचाओं को देखकर रिजेक्ट करके फवज़ा मुहम्मदुन यदहु इला अब्द मनाफ इमरान अबी तालिब, मोहम्मद मुस्तफा ने अपना हाथ आकर अपने
अबू तालिब को दे दिया। मैं उनसे पूछता हूँ उस फरिश्ते की ड्यूटी ये थी कि हाथ गलत तरफ जाए तो रोक ले, वो फरिश्ता कहाँ चला गया? और मालूम है कि हुजूर का नाम किसने रखा है? आजकल तो अजीब अजीब नाम आ रहे हैं शादी, हाँ पिंकी, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। जी हाँ, अभी एक फीनिक्स, एक लड़के का नाम फीनिक्स। खुदा का खौफ करो भाई, आले मोहम्मद के मानने वाले हो, घरों के माहौल को तो ठीक करो। अफसोस हो रहा है मुझे, मजालिस में बीवी आ रही है बन ठन के, ऐसे लगता है जैसे किसी शादी में जा रही। खुदा का खौफ करे, ताज़ियत में आ रहे हैं। अब तो सियासतें हर जगह हो रही है। अल्लाह अकबर का ना आदाब है, या तो मजलिस में आना है बावजूद बैठना, पाँव फैला के नहीं बैठता है। इसलिए फर्श आला पे रसूल होते हैं, रसूल होती है, अली होते हैं, हसन और हुसैन होते हैं। थोड़ा समझाइए ना, एटिकेट भी समझाइए। अब तो कोई कहे कब्र खरीद लो तो उसमें भी हेजिटेशन हो रही है, इसलिए कि मरने का इरादा ही नहीं। इसीलिए हमने अलवैरी फाउंडेशन ने अब शुरू किया है काम, अल्हम्दुलिल्लाह शाहजी के साथ मिलकर, खावर साहब के साथ मिलकर अलवैरी फाउंडेशन ने शुरू किया है। आप हजरात जरा आखिरत को भी याद करें और कुछ एटिकेट्स का ख्याल रखें, नाम वाम रखें तो ऐसे नाम रखें जिनसे इस्लाम पनपता हो। उस नाम की बरकत से भी इंशाअल्लाह आपके बच्चे और बच्चियां अटैक से महफूज रहें। जी हाँ, तो खैर बात तो दूर चली आएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने जब पैदा हुए नबी तो कहा या अब्द मनाफ, ये हजरत अबू तालिब का नाम है। आदमी से सुन लीजिए, आपका नाम क्या है? अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ उसे कहते हैं जो उसका अब्द हो जिसका कोई हमसर ना हो। मैं हैरान हूँ, नाम है अब्दुल्ला और कहते हैं हुजूर के बाबा काफिर थे। ये नाम है अब्दुल मनाफ जिसका नाम ही इस्लाम हो। नहीं, इनका तो नाम ही इस्लाम है, अब्दुल मनाफ। या अब्दुल मनाफ समिरना रफीका, अपने भतीजे का नाम तू रख। आप ईमान से बताएं, दादा रखता है या चचा रखता है? पहले आप बताएं, दादा शाबाश, आप तो बन रहे हैं ना दादा। हाँ, तो दादा रखता है ना भाई, चचा थोड़ी रखता है। ये क्यों कहा तू रख? इसमें फजीलत समझना। कहा समय तो हो मोहम्मद, मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। सोचा नहीं अबू तालिब ने 1433 हिजरी में अगर आप किसी काफिर को मुसलमान करते हैं तो कौन सा कलमा पढ़ाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद नाम रखा किसने था? अबू तालिब ने। हालांकि इसका दुनिया में तो नाम मोहम्मद था ही नहीं, आया ही नहीं था। वहां था अहमद मशहूर, दुनिया में अभी मोहम्मद आया ही नहीं। तो अबू तालिब को किसने बताया कि इसका नाम दुनिया में मोहम्मद है? तो घबरा के मौलिक ने लिखा कि वो अर्श के खजानों में जो छुपा हुआ नाम था मोहम्मद का, अबू तालिब वहां से पढ़ के ले आए। जो अर्श पर रहा हो अगर वो मुसलमान नहीं, उसे शक्लें उनकी ज्यादा ब्राइट, बहुत सारे ईसाई हैं,
हिंदू भी है, सिख भी है, मेरा ही इंतजार क्यों हो रहा? कहने कि हम चाहते हैं कि जो ब्रुकलिन में वेल रेप्यूटेड मौलाना है वो हमारे बेटे का निकाह पढ़े। तो आज के ब्रुकलिन के सुन्नी को समझ आ रही है कि बेटे का निकाह वेल रेप्यूटेड करता है। आप समझ आ गई कि हुजूर के दौर में अगर कोई वेल रेप्यूटेड मौलाना था तो वो अबू तालिब। जरा और करें कि कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा। अब इस पर पूरी तकरीर है, कभी करूंगा मगर आज सुन ले। कलमा नहीं पढ़ा, जब अंगूठी उतारी ना हुजूर ने अपने चचा की, जब अंगूठी उतारी है तदफीन से पहले, तो उस अंगूठी की इबारत हुजूर ने पढ़ी मजमे की। ये साहबे किराम ने हमें बताया। सुभान अल्लाह। इसका मतलब लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। पढ़ के बताया कि मेरे चचा की अंगूठी में ये लिखा था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिइब्नि अखी नबिय्यन व बिइब्नि अली वलिय्यन वसीय्यन इमामा। मैं राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूँ कि मेरा भतीजा मेरा रसूल है, और जो मेरा बेटा अली है वो अल्लाह का वली है, मोहम्मद का वसी है, मुत्तकियों का इमाम है। और अब हुजूर ने मरसिया कहा। उस पूरे साल को आमुल हुज़न मनाया जिसमें ये दो मोहसिन गए, अबू तालिब व खदीजा। और मसीह में ये जुमला कहा, या अम्मे रब्बैतनी सगीरा व कफलतनी यतीमा। चाचा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे यतीम पाकर मुझे पनाह दी। अल्लाह अकबर। मुझे सगीर पाकर आपने मेरी तरबियत की। व नसरतनी कबीरा। और मैं जब बड़ा हो गया चचा तो आपने बड़ा होने के बाद मेरी नुसरत की। यह है मसीहा। मसीहा के पहले जो जुमले हैं ये हैं। और अब मुझे आज सिर्फ इतना इंसाफन कहना है कि करबला में लुट गया अबू तालिब, लुट गया। अल्लाह अपने घरों को सलामत रखे। आज मुझे सिर्फ उस सगीर का जिक्र करना है जो सबसे छोटा है मगर सबसे बड़ी कुर्बानी है उस वो 6 माह का बच्चा, रबाब का बेटा, चोटियों वाला, जिसके बारे में आबिद बीमार को इतना कलक था कि मिनहाल कूफी बहुत सारे सरों की इतला लेके आए। मिनहाल साहबी रसूल है, फला फला कातिल आपके बाबा चचा के मारे गए। कुछ नहीं पूछा। पूछते हैं मिनहाल हुरमिला का क्या बना? यानी हुरमिला के बारे में अली असगर की शहादत का इतना कलक था सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर। और बल्कि मुख्तार ने खुद पूछा था, मुख्तार ने पूछा था हुरमिला से कि ये बता तेरे तरकश में कितने तीर थे? कभी आप मुख्तारनामा भी सुना करें, इसकी तकवीत होती है अकायद को शुअरा से, उलमा से। मुख्तार ने पूछा तेरे तरकश में कितने तीर थे? कहा मेरे तरकश में 3 तीर थे। तूने कहा चला है? पास में 4 भी लिखा। ये जो रिवायत मैं अर्ज कर रहा हूं 3 तीर थे। कहा तूने कहा चला है? कहा पहला तीर मैंने अली के बेटे अब्बास के मशकीज़े में मारा, जिससे गरीबों की आस टूट गई। दूसरा तीर मैंने रबाब के बेटे को मारा। वो तीर से शोभा तीर था मुख्तार, वो हम जंग में घोड़ों को मारते, वो इंसानों को नहीं मारते। और अब ये रिवायत के अजीब जुमले हैं कि जब तीर अली असगर को लगा तो अली असगर का गला और
हुसैन का बाजू जिस तरह दर्जी कपड़े की दो तहों को सीधे एक कर देता है, ये एक हो गए। हुसैन ने बड़ी कोशिश की, हुसैन से ये तीर निकल न सका। ये दूसरा तीर था। तीसरा तीर, मुख्तार तेरा मौला वक्त आखिर जब घोड़े पे झूम रहा था ना, जख्मों से चूर था, तीरों में तीर थे, पत्थरों के जख्म थे, तलवारों के जख्म थे, नेज़ों के जख्म थे, गुर्द लग रहे थे। और जब तेरा मौला कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता, गिरने से पहले मैंने अपने तरकश को, अपनी कमान में तीर को जोड़ा, तेरे मौला ने अपनी पेशानी को बचाने के लिए उल्टा हाथ यूं किया। मुख्तार मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे मौला का हाथ यूं ही रह गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज मैंने जिक्र करना है रबाब के बच्चे का, चरवाहा का बच्चा। ये भी सुन लीजिए आज मुझसे। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि डॉक्यूमेंटेशन बना दी। रवि ये कहता है कि जब अली असगर गए थे ना पानी के मुतालबे के लिए, तो ये हिकमत अरब है, अली असगर के हिस्से की बहन को खश आ गया। सकीना ने कुछ नहीं देखा, वो इंतजार में खड़ी थी कि अभी वहां आते होंगे। उस वक्त खड़ी थी जब होश आई और उस वक्त तीर लग चुका था। और हुसैन बिन अली कभी साथ तरफ आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। जब अंदर गए ना तो बच्ची ने दामन थाम के कहा, या आबा अस्वके आखी, बाबा भैया पानी पिया है? खुदा की कसम ये रिवायत की जुमले है, हुसैन बोल न सके। खुदा किसी भी ऐसा वक्त हुसैन बोल न सके। हुसैन बिन अली ने अली असगर के गले पर पड़ी हुई अपनी आवाज का दामन हटा दिया। जब दामन हटाया ना और लहू लुहान गला देखा, तो बच्ची ने अपने दोनों आंखों पे दोनों हाथ रखे और अपनी माँ के खैमे की तरफ दौड़ती जाती थी और कहती थी, अल्लाह ने जब लिया। रबाब आई। जब रबाब आई तो हुसैन बिन अली ने जब जुमला कहा, बस कोई रहमत नहीं। हुसैन बिन अली कहते, रबाब तुम्हारा मेरे नाना के दीन पे बड़ा एहसान है। मेरे नाना का दीन बच गया तो एक थोड़ी सी रहमत और कर दो। मैं तुम्हें जाने की रहमत देता हूँ, हाथ पे बच्चा उठाओ, मैं जुल्फ़िकार से इसकी कब्र खोद। और औलाद वालों, उसकी वजह मालूम है, जिनके बच्चे नहीं नवासे पोते तो है ना इस एज के, आपने प्रोसेस से तो आप गुजरे हैं। जरा वो दूसरा देखिएगा, खुदा की कसम किसी शहीद की शहादत के बाद हुसैन बिन अली ने आपको याद नहीं किया। अकबर जैसा जवान दिया, आपको याद नहीं किया। बाबा को बुलाया है, अम्मा को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। अब्बास की शहादत में भी शियों को नहीं बुलाया, मगर असगर की शहादत में वो अलग था। फरमाते शियाती महबाइन शरीबत हज़्म माहिर फज़कुरूनी, ऐ मेरे शिया जब भी ठंडा पानी पी मुझे याद करना। और सवेरे तुम पे कतील और गरीब फंदमूनी, किसी शहीद किसी गरीब का किस्सा सुनना तो मुझ पे धाड़े मार कर रोना। आपके इमाम ने ख्वाहिश की है, ये धाड़े मार के जो रोना है ये ख्वाहिश है इमाम, ये बनावट नहीं है, ये तसव्वुर नहीं है। मैंने मैनचेस्टर में भी कहा था, अगर ये फैशन होता तो खत्म हो गया होता। ये इबादत है, ये इबादत है जो जारी है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं, लैतकुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा अस्तस्की लितिफली फअबौ अन यरहमूनी। ऐ मेरे शियों, काश तुम करबला में होते और अपने इमाम की गुर्बत देखते। तुम्हारा इमाम अपने 6 माह बच्चे को तलाश आपके लिए कैसे ले जा रहा था और जालिमों ने से शोभा तीर से कैसे जब्त किया। देखिए, सवारियों में एक सवारी है जो नहर होती है। मेरे जुमले की कदर करना। जानवरों में कुर्बानी में एक कुर्बानी ऐसी है जो नहर होती है, मगर खुदा की कसम वो सबसे बड़ी कुर्बानी है। हुसैन के तो सबसे छोटे बेटे को नहर किया।
3 मरतबा अल्लाह अकबर। बस रबाब ने हाथ में बच्चा पकड़ लिया। माशाअल्लाह बड़ी मकबूल मजलिस है। जरूरी नहीं कि ज्यादा मसाइल पढ़े जाए, जब काम में जाए ना काम में जाए। हमारे किबला थे, मेरे बुजुर्ग थे अल्लामा हाफिज मोहम्मद हसनैन साहब किबला नकवी। मैंने उनसे ये जुमला सुना था, आज तक जब अली असगर की शहादत पढ़ता हूँ वो किबला याद आते हैं। वो किबला खुशाब में पढ़ रहे थे और फरमाते थे, मेरी किसी बहन बेटी के यहाँ अगर 6 महीने का बच्चा हो, उसकी गोद में तो जब तक मैं शहादत पढ़ रहा हूँ वो बच्चे को किनारे रखो, शायद असगर की माँ आई हो। बच्चा पकड़ जन्म खत्म हो गई। मालूम है ना ये रबाब इब्न और कैस की बेटी, ये रईसों की बेटियां थी, ये शहजादियां थी। अगर किसी पे हमेशा ही बुरा वक्त पड़ता हो और एक वक्त और बुरा पड़ जाए तो वो आदत होती है। ये वो थी कि जिन्होंने कभी तकलीफ नहीं देखी थी, ये वो बीवियां थी। अल्लाह अकबर। ये मेरे जिलों के रबाब में मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है कि जब गुजर के आए थे ना, जब गुजर के आए थे तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि मेरी भाभी और मेरे बाप के हाथ में एक पोटली रहती है, एक कचड़ी। जब 1 साल के बाद रबाब धूप पे मर गई तो जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के देखा, देखूं तो सही ये रुक करबला के माल से क्या बचा के लाई थी, जिसे शाम में भी रखा, करबला में ले आई, मदीना में ले आई। जनाब ज़ैनब कहते मैंने जो कचड़ी खोली अली असगर के जले हुए जूड़े की किसी वक्त में माशाअल्लाह बड़ी मजलिस हो गई, तो उसमें आप अहमद नहीं दे रहा, शाही राजी रहना। बस मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। रबाब ने हाथ में पकड़ा अपना बच्चा, जुल्फ़िकार से साहिब जुल्फ़िकार के बेटे तलवार के साथ जुल्फ़िकार के साथ कब्र खोदी। वो जो शायर कहता नन्ही से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को चाड़ा। अब शबीर के दामन में कुछ रहा नहीं था। जब दफन करने लगे बस आखिरी जुमला, इंशाअल्लाह खालिद जम्मे में बसाए पढ़ना है और इंशाअल्लाह भाई अशरफ रिजवी के यहाँ मैं सिर्फ इस बच्चे की बहन, हिस्से की बहन सकीना के मसाइल पढ़ूंगा और आज मैं बीबी ज़ैनब के मसाइल पढ़ूंगा शाह नजफ में। बस आखिरी जुमला सुन ले। रबाब तुम बच्चा लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फ़िकार से कब्र खोद दूं। जुल्फ़िकार से कब्र खोदी, बच्चे को लिटाया, पांव से लेकर मुंह तक गले तक हुसैन गर्म रेत डालते आए। बस से आगे नहीं जाऊंगा। जब चेहरे पर रेत डालने का वक्त आ गया, हुसैन जैसा साबिर पुष्ट करके